Okay, so today we'll be studying that how to find the equation for minimum speed at top position, mid position and at bottom position for a particle performing vertical circular motion. So I'm assuming that this is my circle and this is the center of the circle, okay, and this is a particle which is performing circular motion, vertical circular motion. So it is going around in a vertical circle along this, okay. So at the top position, this will be the diagram for the top position. Now the particle is at the top position, okay. Now what are the forces acting on this particular object? Okay, first we need to draw the free body diagram, FBD, okay. So generally forces acting on the bob performing vertical circular motion, there are two forces. First force, obviously the force of gravity on the bob. The bob is not weightless, the bob is having certain amount of weight, because of which that bob will be attracted towards the ground. The direction of that gravity will always be downwards. Never ever you will see gravity acting upwards, gravity will always be downwards. Second force क्या काम कर रहा है? Now this bob is performing vertical circular motion. Why? Because it is tied to a string. Look at this is a string, okay, and the force provided by the string is called as tension. It is called as tension, okay, tension in the string. So hence I can conclude that there are two forces acting along the bob. First gravity, second tension, okay. Now at the top, mid, bottom we'll try to make three different diagrams for that, okay, and we'll try to find out कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है. Now our first part, the first part of our chapter, at the top position. At the top position diagram will be something like this, okay. This is my center circle, the bob is over here, okay. Now if I try to make a diagram, the gravity is acting what? The gravity is acting obviously downwards. Gravity is acting downward. This is mg, the weight of the bob. Second, tension. What will be the direction of the tension? The direction of the tension is always along the string. जहाँ पे रस्सी है, टेंशन भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है. ना अभी इफ़ यू लुक एट ओवर हियर, बॉब के नीचे है यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग, ओके. सो हेंस टेंशन विल ऑल्सो बी व्हाट? इट विल ऑल्सो बी डाउनवर्ड, okay. So mg is also along the center, toward the center. Tension is also towards the center, ठीक है. So I will conclude what? I will conclude that let us assume that this is position A, position A, and the velocity at position A is given by what? It is given by VA. Okay, let us conclude that. Okay, fine. So the formula for centripetal force will be equal to how much? Centripetal force का formula रहेगा m VA square upon R. Generally the formula for centripetal force is mv square by R, बट यहाँ पर v नहीं है, यहाँ पर v क्या है? VA है, ठीक है. तो VA के अलॉन्ग क्या क्या काम कर रहा है? सेंट्रिपेटल फोर्स के अलॉन्ग क्या क्या काम कर रहा है? पहला तो mg काम कर रहा है डाउनवर्ड्स, फिर क्या काम कर रहा है? टेंशन, ओके. अब टेंशन का हम लोग क्या सिंबल देंगे? हम लोग उसको बोल देंगे TA. TA इज व्हाट? टेंशन एट पॉइंट A, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, कैन एनीवन इफ यू टेल मी दैट द वैल्यू फॉर TA, टेंशन एट पॉइंट A, कितना होगा? कैन एनीबडी गिव मी अ पर्टिकुलर आंसर? ओके. टेंशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी रस्सी है ना, रस्सी के ऊपर अगर तुम ये कर लोगे ना, क्या बोलते हैं, अगर कोई भी रस्सी पे अगर तुम ऐसा पत्थर अगर बांध दोगे, ओके. नॉर्मली देखो, नॉर्मली अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग ये हवा से ऐसे लहराएगा, घूमेगा, ये करेगा, वो करेगा, अगर रस्सी ऐसे ही लटका हुआ है तो, ठीक है. बट अगर रस्सी के नीचे तुमने यहाँ पर ऐसा अगर एक वेट सस्पेंड कर दिया, अगर बांध दिया अगर, सो दिस रोप विल नो लॉन्गर रिमेन फ्री, इट विल बिकम वेरी स्ट्रेट, एकदम टाइट हो जाएगा वो, बोलते ना टेंशन में आ गया वो, ठीक है. तो हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज टेंशन, ओके. टेंशन किस, अभी देखो, अगर मैंने अगर बड़ा पत्थर अगर लगा दिया मैंने, टेंशन विल इंक्रीज. अगर मैंने छोटा पत्थर रखा तो टेंशन विल डिक्रीज. टेंशन विल ओवरऑल डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द वट एवर आई एम सस्पेंडिंग डाउन, ओके. अब एट पॉइंट A अज्यूम ये करो कि हमारा बॉब इधर है और रस्सी इधर है, तो यहाँ पर मुझे देख के बताओ कि हमारे रस्सी पे कितना वेट टंगा हुआ है, कितना वेट सस्पेंडेड है. कैन एनीबडी गिव मी एन आंसर? 0 नहीं. हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रस्सी पे वेट सस्पेंडेड नहीं है, उल्टा है, वेट पे रस्सी सस्पेंडेड है. अंडरस्टूड? जो बॉब है वो ऊपर है, उसके ऊपर तो जनरली देखा जाए तो रस्सी तो एकदम फ्रीली वो तो लटक रहा है, वो तो जस्ट सस्पेंशन मोड पे है. टेंशन TA इज इक्वल टू हाउ मच? टेंशन TA इज इक्वल टू 0. सो सब्स्टिट्यूट TA इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. द फॉर्मूला विल बिकम mVA स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू m इंटू G. प्लस 0 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, m हो गया कैंसिल. So therefore VA square is equal to RG, or I can say that
वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, दैट्स इट, अंडरस्टूड, ठीक है, फाइन। तो हमें टॉप पोजीशन का वेलोसिटी मिल गया। एट द टॉप पोजीशन द वेलोसिटी फॉर वी ए इज इक्वल टू हाउ मच, वी ए इज इक्वल टू आर जी, रूट ऑफ आर जी, ठीक है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन, विल गो टू द लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है, लेट अस गो टू द लोअर मोस्ट पोजीशन। सो आई विल नाउ ड्रॉ द डायग्राम अगेन। लोअर मोस्ट पोजीशन में देखो हमारा सेंटर यहाँ पर है, रोप यहाँ पर है और बॉब ऐसा सस्पेंडेड है, ठीक है। अब देखो दो फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन सा, वेट और टेंशन। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। अब टेंशन अपवर्ड्स और जो वेट डाउनवर्ड्स है, इसमें टुवर्ड द सेंटर कौन सा वाला है, कैन यू गिव मी एन आंसर। सेंटर की तरफ कौन सा है, टेंशन की एम जी, टेंशन है ना। एम जी तो नीचे जा रहा है ना, सेंटर देखो, सेंटर यहाँ पर है, इस इधर की तरफ सिर्फ टी काम कर रहा है, दैट्स इट, बाकी एम जी तो अवे जा रहा है, ओके। सो व्हेन वी मेक द फॉर्मूले फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देखो लेट द पॉइंट एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी, इसका नाम अपन ने क्या दिया, बी दिया। पिछले केस में अपर मोस्ट इसका क्या नाम क्या था, ए था, यहाँ पर क्या है, बी है। तो वेलोसिटी एट बी कितना रहेगा, वी बी, वेलोसिटी एट बी कितना रहेगा, इट विल बी वी बी। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, एट पॉइंट बी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम वी बी स्क्वायर बाई आर, अंडरस्टूड। दिस इज इक्वल टू, वी विल टेक टेंशन प्लस, वाई टेंशन प्लस, क्योंकि टेंशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ओनली, टुवर्ड द सेंटर ओनली, टुवर्ड द सेंटर को जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में जो सेम है प्लस लो, और जो अपोजिट में है उसको क्या लेंगे हम लोग, माइनस। तो एम जी क्या रहेगा, प्लस के माइनस, एम जी रहेगा माइनस, वेरी गुड, एम जी रहेगा माइनस, ओके, टी माइनस एम जी, अंडरस्टूड। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेंशन जीरो नहीं है, पिछले केस में हमने क्या कहा था, टेंशन इज जीरो, वाई, बिकॉज वो वेट के ऊपर रस्सी सस्पेंडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर रस्सी पे वेट सस्पेंडेड है, तो टेंशन कुछ रहेगा यहाँ पर। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर द टेंशन, और वी नीड टू फाइंड, उसके बिना भी अपन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, अभी देखो हमने पिछले भी बहुत सारे केसेस में देखा है कि टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम, है ना। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसने बनाया था, आइंस्टाइन ने बनाया था। हर एक चीज़ न्यूटन ने नहीं बनाया, आइंस्टाइन ने भी बहुत कुछ किया है, ठीक है। ये चीज़ किसने बनाया था, आइंस्टाइन ने बनाया था, ठीक है। और हम इस लॉ को फॉलो करते हैं, ओके फाइन। तो ये हम अगर इस केस में लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखो एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है, एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, तो अगर एक ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर है तो उसके पास क्या ज़्यादा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जितना तो ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ते जाएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। वाई, बिकॉज नाउ इट इज इन मोशन। सपोज तुम एक पत्थर को लेकर तुम्हारी बिल्डिंग के टेरेस पे, तुम योर बिल्डिंग इज लाइक 50 फ्लोर्स का बिल्डिंग, वेरी टॉल, ओके। तुम टेरेस पे एक पत्थर अपने हाथ पे लेके खड़े हो, तो ये पत्थर के अंदर अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वाई, क्योंकि ज़मीन से 50 फ्लोर ऊपर वो है, इतने हाइट पे है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, एच कितना है, 50 फ्लोर्स, ओके। अगर तुमने हाथ छोड़ दिया तो पत्थर गिरना चालू होगा। वो मोशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, हर एक मोशन करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, ग्रेविटी से आएगा, है ना। तो जब वो नीचे जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते आएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब रहेगा, जब वो ज़मीन को जस्ट नीचे जाकर जब टच करेगा, धड़ाम करके जाके नीचे ज़मीन पे जाके गिर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाई, ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वेरी गुड। सो वी विल से दैट व्हेन अ पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम टॉप मोस्ट पोजिशन टू बॉटम मोस्ट पोजिशन, delta PE will be equal to delta KE. Delta means change in potential energy will be equal to what? It will be equal to change in kinetic energy. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमने बचपन में किया होगा, क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, है ना। तो आई विल से mgh। अब हाइट कितना है, देखो ए से लेके बी तक का हाइट है डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो h के बदले में क्या लिखूंगा, 2r, समझ में आया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के इज व्हाट, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज हाउ मच, इट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज हाउ मच, इट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर। समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो एट बी इट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, एट ए इट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है, समझ में। अब देखो यहाँ पर हम लोग सब जगह पे से हम लोग एम 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 कर देंगे कैंसिल, क्योंकि एम तो मास तो वही बॉब की बात कर रहे हैं, तो मास तो सबका सेम है, हम कर देंगे उसको
कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो इधर का देखो 2 इंटू आर जी, 2 इंटू आर जी विल बी इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों का कॉमन डिनोमीटर ले लिया मैंने, ठीक है। आई हैव टेकन दोनों का डिनोमीटर 2 कॉमन, ऐसा करके यहाँ पे ले लिया। ये 2 जाएगा उधर, ये 2 जाएगा उधर, और क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इज हाउ मच, इट इज 4 आर जी। सो 4 आर जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ वी डू नो दैट 4 आर जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं और वी ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। वी ए स्क्वायर का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे हमने, वी ए स्क्वायर हमने पिछले केस में निकाले थे, देखो यहाँ पर कितना है, रूट ऑफ आर जी ना। तो वी ए स्क्वायर कितना है, वी ए स्क्वायर इज आर जी, तो हम डाल देंगे वी ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर। चलो तो देयर फॉर 4 आर जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस आर जी, माइनस आर जी वहाँ पर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस आर जी। तो 4 आर जी प्लस आर जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, सो देयर फॉर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर जी, और आई कैन से देयर फॉर वी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 आर जी। हैंस वी हैव गॉट द एंटायर फॉर्मूले फॉर वेलोसिटी एट द बॉटम, ठीक है। अब हमारे पास देखो दोनों फॉर्मूला है अपने पास, वेलोसिटी एट टॉप भी है हमारे पास, वेलोसिटी एट द बॉटम भी है हमारे पास। अब क्या बचा, सिर्फ वेलोसिटी एट द मिड पोजीशन, ठीक है। चलो मिड पोजीशन का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मिड पोजीशन का हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर ये अपना सर्कल है, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर अपना बॉब लग गया, ये मिड पोजीशन हो गया। यहाँ पर एम जी वेट काम कर रहा है इस तरफ, और टेंशन टी काम कर रहा है इस तरफ, ओके फाइन। एम जी विल ऑलवेज एट डाउनवर्ड्स, तो एम जी डाउनवर्ड नीचे इस तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अगेन विल बी यूजिंग द, और यहाँ पर मैंने पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, लेट द पोजीशन इन द, लेट द पॉइंट बी सी, ओके। सी ए भी तो हम लोग यूज़ कर सके, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सी, तुम इसको सी बोल सकते हो, और ये जो मिड है ना, ये भी मिड ही है, इसको तुम डी बोल सकते हो। सो देयर आर 2 मिड पोजिशंस, ये वाला सी और ये वाला डी, ओके। तो आई कैन से वेलोसिटी एट सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, विल बी यूजिंग अगेन द फॉर्मूले फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अज्यूम करो कि तुम ए टू सी जा रहे हो, ठीक है, लाइक दिस इज ए, ए टू सी लाइक दिस। सो वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी, डेल्टा पी ई विल बी इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे मालूम पड़ा, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ किसने बनाया, आइंस्टाइन ने बनाया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच। यहाँ पर देखो यहाँ से लेके इधर आया, हाइट कितना गया, सिर्फ इतना, ये क्या है, ये है रेडियस आर, तो एम जी आर, दैट्स इट। दिस इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के इज व्हाट, हाफ एम ए से लेके सी तक का ना, हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। तुम वीसी के पहले तुम वीडी भी लिख सकते हो कि देखो डी ये वाला पोजीशन का, यहाँ पर भी देखो चेंज ऑफ हाइट आर ही हो रहा है, तो इट्स वन द सेम थिंग, ठीक है फाइन। सबका देखो एम 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 हो गया कैंसिल, तो आर जी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो 2 ले लो उधर उस साइड पे, सो 2 आर जी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, है ना। लेकिन हम ऑलरेडी बहुत पहले वी ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, हमने वी ए स्क्वायर कितना निकाले थे, रूट आर जी, वी इज इक्वल टू रूट आर जी, ठीक है। अगेन विल बी यूजिंग दैट सेम थिंग डाउन, ठीक है, वही सेम थिंग हम लोग वापस नीचे यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वी ए स्क्वायर इज आर जी, सो 2 आर जी इज इक्वल टू आर जी माइनस वी सी स्क्वायर, ठीक है फाइन। तो वी ए स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 2 आर जी, ठीक है। नहीं, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, वेट वेट 1 सेकेंड, वेट 1 सेकेंड, दिस इज़ नॉट वी ए, दिस इज़ वी बी, सॉरी दिस इज़ वी बी, आई एम गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सॉरी आई एम गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, आई एम गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वी बी रहेगा। एंड द वैल्यू फॉर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, द वैल्यू फॉर वी बी स्क्वायर वो भी हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है, वो है 5 आर जी, हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है, डोंट वरी, 5 आर जी, ओके। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 5 आर जी, अंडरस्टूड, दैट्स इट। बाकी एवरीथिंग इज सेम, बाकी एवरीथिंग कुछ वहाँ पे कन्फ्यूजन मत करो। अब देखो वी सी स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे लेके जाओ, 2 आर जी पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर जी माइनस 2 आर जी, है ना। सो देयरफॉर वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर जी,
or I can say that Vc is equal to root of 3rg. That's it, that's your final answer. ठीक है, so we have found the velocity at the top, mid and bottom. टॉप में कितना है, टॉप में है va, वो कितना है, वो है रूट ऑफ rg. बॉटम में कितना है, बॉटम है vb, वो कितना है, वो है रूट ऑफ 5rg. और मिड में कितना है vc या तो फिर vd, वो क्या है, वो है रूट ऑफ 3rg. अब ये देख के तुम बता सकते हो कि हाईएस्ट स्पीड कहाँ पे रहेगा, बता सकते हो टॉप में, मिड में, बॉटम में सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ रहेगा, vb. वाई, बिकॉज इट्स 5rg, है ना. उसके बाद मीडियम स्पीड कहाँ पे रहेगा, मिड पोजीशन में, कितना, रूट ऑफ 3rg. और सबसे कम स्पीड कहाँ रहेगा, रूट ऑफ rg. दैट्स इट. तो अगर अज्यूम करो कि पता है वो एसएल वर्ल्ड में रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर राइड में पता है ऐसा जाते हैं, फिर ऐसा एक सर्कल आता है और फिर ऐसा करके जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, द रोलर कोस्टर इज परफॉर्मिंग व्हाट, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो जब रोलर कोस्टर अपना यहाँ से जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसका स्पीड सबसे कम यहाँ पे रहेगा, टॉप पोजीशन पे. फिर मिड तक का स्पीड और बढ़ेगा और बॉटम में जब यहाँ से एग्जिट करेगा तो इसका स्पीड विल बी मैक्सिमम. ठीक है, या फिर जब एंटर भी करेगा तो इसका स्पीड विल बी मैक्सिमम. फिर मिड पे स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा और टॉप पे स्पीड विल बी लीस्ट. हैंस दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट द टॉप, मिड एंड बॉटम. ठीक है, फाइन, समझ में. अब देखो एक और रह गया, डिफरेंस ऑफ टेंशन एट एक्सट्रीम पोजिशन. डिफरेंस ऑफ टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग अगर लेंगे जो हमने यहाँ पर फॉर्म किए थे इस सम के अंदर, हम लोगों ने जो यूज़ किए थे, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था mg प्लस ta इज इक्वल टू mva स्क्वायर बाई r. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले फॉर्म किया था, पता है हमने ta को 0 लिया था, वैसा करके हमने सॉल्व किया था. ठीक है, एंड ऑल्सो कंसिडर व्हाट, कंसिडर इक्वेशन नंबर 3 जो हमने थर्ड इक्वेशन कंसिडर किया था, क्या था वो, लोअर बॉटम मोस्ट का, tb माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाई r. ठीक है, ये है टॉप पोजीशन का और ये है क्या, ये है बॉटम पोजीशन का. ठीक है, अब अगर दोनों में से अगर अपन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, चलो इसको 1 2 नाम दे देते, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा, mg प्लस ta माइनस tb माइनस mg. ठीक है, समझ में, मतलब ये पार्ट माइनस दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस इज m va स्क्वायर बाई r माइनस m vb स्क्वायर बाई r. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, या तो फिर एक काम करते, इसको ना एक काम करते, लेट अस मेक इट उल्टा. ओके, इसको उल्टा करते हैं हम लोग. ये एक स्टेप में देखो, टीबी हाई है, टीए लो है, टीबी हाई है और टीए लो है वहाँ, बिकॉज टीबी नीचे है, नीचे टेंशन विल बी हाईएस्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस करते हैं. चलो 2 में से 1 माइनस करते हैं. तो पहले क्या आएगा, टीबी माइनस एम जी माइनस एम जी प्लस टी ए इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम वी ए स्क्वायर बाई आर. ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व दिस थिंग. टी बी माइनस एम जी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम बाई आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. ठीक है, कहाँ पर, नहीं प्लस माइनस माइनस हो गया ना, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया. ठीक है, फाइन. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको यहाँ पर, अभी हम लोग इसको और फर्दर क्या बोलेंगे कि टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम माइनस 2 mg, इट विल बिकम माइनस 2 mg इज इक्वल टू एम बाई आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. ठीक है, फाइन, समझ में. अब हमें ये पता है कि एम बाई आर वी बी स्क्वायर कितना है, वी बी स्क्वायर वेलोसिटी एट द बॉटम हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, कितना था, रूट ऑफ 5rg. रूट ऑफ 5rg का स्क्वायर कितना रहेगा, जस्ट 5rg माइनस वी ए स्क्वायर कितना है, रूट ऑफ rg, मतलब वी ए स्क्वायर कितना रहेगा, rg. ठीक है, तो 5rg माइनस rg हाउ मच, इट इज इक्वल टू 4rg. 5rg माइनस 1rg इज 4rg. तो m बाई आर इंटू 4rg, r हो गया कैंसिल. तो फिर क्या बचा, टी बी माइनस टी ए
माइनस 2mg इज इक्वल टू 4mg। अब ये माइनस 2mg को मान ले लो क्या बन जाएगा, प्लस 2mg। सो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg which is equal to 6mg. Hence this is the final value of the difference of tension at the top and the bottommost position. Understood? Fine. So assume करोगे that you are a fighter pilot, okay, and you are flying a fighter jet, something like this, okay, ऐसा करके है अपना प्लेन समथिंग, ठीक है, एंड यू आर फ्लाइंग दिस इन अ वर्टिकल सर्कल, तुम एक स्टंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो एट द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड द बॉटम मोस्ट पोजिशन तुम्हारे बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो कितना रहेगा, दैट विल बी 6 टाइम्स mg. mg इज़ व्हाट, द वेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ योर बॉडी। अज्यूम करो कि एक इंसान है, उसका वेट कितना रहेगा 75 किलोग्राम्स फॉर एग्जांपल, एवरेज ह्यूमन बीइंग, तो उसका 75 किलोग्राम का इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा, तकरीबन 75 6 कितना आएगा 600, ओके, तकरीबन 600 kg का फोर्सेस उसके बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, ओके। अब अज्यूम करो कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर किसी ने लाके 600 फोर्स का वजन, केजी का वजन रख दिया, तो कितना तुम्हारा बॉडी स्ट्रेन में रहेगा। सो दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड? ठीक है, फाइन। सो वी हैव फिनिश्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन।